Currently, I'm working at ABB as an automation engineer. So tell me about the shift from Reliance to ABB. मतलब what exactly has happened? मतलब Reliance में तो you got into because one of the main reasons for it was उसके लिए तो मैंने पे किया था. तो आपने एक पे करने के बाद आपने प्रोग्राम किया था. ओ वो सर्टिफिकेशन इज एक्चुअली रियली रियली इंपॉर्टेंट. ये सारी कोर्सेज का ये लोग देखते हैं. फिर मैंने बोला ठीक है सर, मैंने अभी रिसेंटली ये इंटर्नशिप की है तो वहाँ पे मैं इतना सीखा. तो वो शॉक हो गया कि भाई अच्छा तूने मतलब ये सब. So what was your package that was offered to you in Reliance? Like what was the average that was offered to you? वैसे आपको जल्दी इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे अगर वो चीज़ अगर आप देखें, पर वो रोबोट को प्रोग्राम कौन करेगा? Reveal one secret of ABB जो किसी को भी नहीं पता. Hello guys, welcome to another podcast with my equation. In this episode, we are going to be meeting Mr. Darshan. He is a working professional and has gotten a lot of experience into the world of machine automation, robotics, and of course, electronics and ICs. In here, we are going to be talking about a lot of concepts of engineering, robotics, electronics, the world of core engineers, and specifically how to make a great career in core engineering, plus company as big as ABB, which is obviously the world's biggest robotics company at the moment. Plus, we'll be getting to know a lot of information about how big companies like ABB and other companies which are currently working in the world of robotics are currently functioning. Also, an add-on to this, in this episode we'll be covering a lot of questions that are most commonly asked by you guys that I have curated specifically to answer all your needs that you are currently facing. So I'm super excited for you guys to watch this episode and learn a lot from them. Oh, wait a second. Make sure you subscribe, like and share this episode to all of your friends. Let's go. Hi Darshan, कैसे हो? All good? Hi. बस बढ़िया. Right. Thank you so much for coming here. पहली बात तो for this podcast. It is so nice to have you. But सबसे पहले let us get to know कि who you are, what you are as a person, what have you done till now. ठीक है? Okay. All your experiences, सब कुछ जो भी हमें ज़रूरत है समझने के लिए आपको, a lot more into you. So we would love to know about that first. So basically my short brief that you want, right? Yeah, sure. I'm Darshan Panchal. My native is from Ahmedabad and मेरी अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अब तक मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर चुका हूँ. Oh, great, wow. And currently I'm working at ABB as an automation engineer. And अगर मेरे कॉलेज टाइम की बात करूँ तो basically I did bachelor's from like GEC Gandhinagar in instrumentation and control. And तो born and brought up everything गुजराती हो आप? yes, बढ़िया, बहुत बढ़िया. So कॉलेज भी यहीं पे, स्कूल भी यहीं पे, हाँ, काम भी यहीं पे ही किया? हाँ, काम नहीं, एक्चुअली रिलायंस जो था वो सूरत में था. गुजराती है ना? हाँ, गुजराती है. तो गुजरात में ही born brought up everything in Gujarat. Yes. Very nice यार. तो tell me about your family. मतलब are you from a background of service only? मतलब आपको करना ही था? Did you want to work like this? क्योंकि गुजराती मतलब धंधा और धंधा मतलब business तो थोड़ा सा it's a bit awkward for us to we are also staying in Gujarat right now. तो हम जिससे भी मिलते हैं ना कि वो बस धंधे की बात करते हैं. तो इसलिए I just wanted to know कि मतलब फैमिली में ऐसा कुछ है कि आप पूरे ही अलग निकले? नहीं वैसा नहीं है. मतलब फादर का बिजनेस ही है. एंड बेसिकली मेरा जो था मोटिव कि मैं इस फील्ड में आऊँ वो बिकॉज ऑफ माय ब्रदर था. बिकॉज कजिन ब्रदर नॉट माय. सो मेरा कजिन ब्रदर जो था वो मेरे से 4 साल बड़ा है. तो उसने भी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल लिया था. ओके, तो यू आर फ्रॉम ECIC? Yeah. Instrumentation and control. Yes. बहुत बढ़िया. Why did you choose a core field? Because because I was I was seeing him ना from beginning like वो उसमें कंट्रोलर से जो भी कोडिंग वो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह करते थे तो आपको बड़ा मजा आता था. ओके. हाँ, सो जो मशीन्स से इंटरेक्शन वगैरह. ओके. तो उसमें भी मतलब that was fun, so that's why I also choose this. वेरी नाइस. तो फैमिली की बैकग्राउंड भी मतलब पापा एंड भैया एवरीवन हैज बीन इन दिस सेम फील्ड ओनली? No. अच्छा, ओके. It's totally different. Okay, it's very different. Very nice. अच्छा, you said that you are currently working in ABB, correct? Correct. Great. So
ABB very big name, Yes. दुनिया का सबसे बड़ा in terms of robotics. Hmm. So पहली बात तो did you मतलब you are in ECIC correct? ऐसा नहीं कि आप pure robotics domain के हो. Yes. तो choosing a robotics company over every other company क्योंकि there was Schneider, there was Siemens, there was Cisco, मतलब इतनी सारी companies है, there was Texas Instruments, you could have also gone over there. Yes. But out of all these companies that are pure electronics, electrical का proper IC comes also in electronics and electrical दोनों में आता है. But mostly electricals लोगों को ज़्यादा मैंने देखा है IC specialization लेते हुए और उसी field में ही काम करते हुए. तो like why a robotics company? Like why not a brand player? That's what. ओके सो एक्चुअली ऐसा बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जस्ट ओनली रोबोटिक्स, Okay. बिकॉज रोबोटिक्स में अगर आप बात करते हो यहाँ पे इंडिया की पर्टिकुलरली, इंडिया में है रोबोटिक्स के जो भी बड़े प्लेयर्स वगैरह, बट मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आप अगर देखोगे तो वो होगा कोडियन. जिनको नहीं पता है उनको बताता हूँ कि कोडियन इज जस्ट पिक एंड प्लेस काइंड ऑफ Yes, 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 ओके. yes. सो वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में यूज़ होता है. Okay. और उसके लिए ही रोबोटिक्स लोगों को मतलब उनके माइंड में ऐसा है कि नहीं, रोबोटिक्स मतलब कि कुछ तो एक रोबोट टाइप है, हैंड वगैरह है और वो यहाँ से यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यही होती है लोगों की. हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो यही होती है. बट उसके पीछे एक मशीन ऑटोमेशन करके भी होता है, एक पूरा अलग ही डिवीजन है मशीन ऑटोमेशन. तो you are working currently in automation department. बोथ Both. या हाँ, robotics and machine automation दोनों. रोबोटिक्स. Oh great, very nice, very nice. आप अभी ABB में हो, correct? So how does your day looks like in ABB? मतलब सुबह से लेके रात तक क्या प्रेशर है, क्या स्ट्रेस है, क्योंकि the world's biggest robotics company might be giving a lot of stress to their employees यार. I तो for sure feel like this. हाँ, यस. तो इतना स्ट्रेसफुल होता भी है एक्चुअली में कि मतलब how does it actually look like? एक्चुअली वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर आपको इंटरेस्ट है राइट, आपको वो चीज़ करनी ही है, या फिर आपको ऐसा है कि मुझे कुछ सीखना ही है राइट, सो उसके लिए फिर आपको टाइम देना पड़ेगा. फिर ऐसा नहीं है कि नहीं यार मेरा तो मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा. तो वो सब थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन एट द एंड अगर आपको सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर. So what do you exactly do every single day? Like when do you wake up? What is your routine? Like as a ABB का machine automation and specifically in robotics में जो आप काम करते हो, how does it look like? Do you study every single day? Because do you practice whatever has been told to you? Because at the end of the day, I feel like this ki, because I've also worked in companies. Yes. I feel like this ki every single day you have to learn something. Yeah. And it has to differ from the previous day that you have learned. Yes, yes. And चाहे आप सेम सॉफ्टवेयर में 10 साल काम करो, लेकिन उस पे क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या एरर मार्जिन्स है, दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपके मैनेजर्स भी आपको पूछते ही होंगे एट द एंड ऑफ द डे. सो हाउ डज योर डे लुक लाइक? सुबह क्या करते हो आप? डू यू हैव लाइक अ हेल्दी रूटीन? व्हाट डू यू डू? या सो एक्चुअली करंटली अगर मैं बताऊं कि कंपनी का वर्क फ्लो कैसे चलता है, जस्ट हमारे डिपार्टमेंट का, तो वो कैसा है कि हम जो है वो मशीन बिल्डर्स के साथ ही काम करते हैं. हम ऐसा नहीं है कि जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में है राइट, तो वही बनाना है, उसमें वो तो एक टाइप ऑफ टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी करी हुई है, उसमें जो कुछ ज़्यादा इंजीनियरिंग नहीं है राइट. सो हम क्या करते हैं कि जो भी मतलब मान लो कुछ नई डेवलपमेंट है, जो प्रीवियस कुछ जनरेशन है मशीन की, उसमें कुछ 5-6 चीज़ें एडिशन करके उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है, ऐसा कुछ है उस टाइप का एप्लीकेशन, तो हम वो एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं. मतलब कि हमारा नए एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट्स चालू ही होता है. ओके. सो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि लास्ट टाइम जो किया था वही करना आएगा. सो उसमें चैलेंजेस आते हैं. और मान लो कि ऐसा है कि अगर उनके पास कन्वेंशनल कुछ भी पहले की टेक्नोलॉजीज है राइट, उसमें अगर कुछ अपडेट्स है तो वो भी उसमें इंटीग्रेट करेंगे. फिर उसको इंटीग्रेट करने बैठेंगे तब पता चलेगी इसमें तो 4 चीज़ नई आ गई है, तो वो फिर कैसे इंटीग्रेशन होगा उसका, वो सब मतलब एक मान लो कि जैसे जैसे हम करेंगे ना वैसे वैसे इंटरेस्ट से आता जाएगा वैसा टाइप. Got it. So what is your working hours in ABB? वैसे तो बोलने के लिए तो 8 पर वो तो अभी सबको. तो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कि मतलब आपका ऑफलाइन चल रहा है पूरा 5 days? हाइब्रिड होता है वो. हाइब्रिड होता है या अगर मान लो कि कुछ ट्रायल्स लेना है ऐसा कुछ है तो कस्टमर के साइट पे भी जाना पड़ता है,
एंड उनके एंड से भी कोई उनका एंड कस्टमर है, अच्छा, वहाँ पे कुछ उनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है, वो Okay. सब है, तो उसके लिए भी जाना पड़ता है। so what current product of robotics are you currently working? मतलब अभी ABB का एक प्रोजेक्ट डिवीजन में है जो आप ऑटोमेशन, मशीन ऑटोमेशन और रोबोटिक्स कर रहे हो, वो स्पेसिफिकली कौन से रोबोटिक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो? बिकॉज आई नो अबाउट IRB 1200D, आई नो अबाउट 1230D, I know about like SCARA, I know about SCARA that ABB also has its own. I know about bipods, I know about tripods. So what are you currently working on अभी ABB में? अभी करंटली जो भी मशीन मतलब कि सर्वो टाइप ऑफ एप्लीकेशंस जो भी रहती है, Yes. तो उसमें अभी चल रहा है। एंड मुझे जो कस्टमर्स अलोकेट किए हैं वो एक है अपना कंक्रीट का कस्टमर है, Okay. और एक कन्वर्टिंग इंडस्ट्री का है, Okay. और एक जो है प्लास्टिक इंडस्ट्री का है। Okay. प्लास्टिक्स में अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक्स में जो भी प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, PE के जो भी ग्रेड वाइज मटेरियल्स रहते हैं, तो वो मटेरियल्स को क्या करते हैं, उनको एक परसेंटेज में सारे एक्सट्रूडर्स होते हैं। एक्सट्रूडर्स मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स जाएंगे एक एक करके सब में, और एक स्क्रू होता है और वहाँ पे हीटर्स लगे होते हैं, तो वो स्क्रू से रोटेशन कर करके आगे जाएंगे। देन वो जो मटेरियल है वो हीट करके एक लिक्विड टाइप ऑफ फॉर्म में, यहाँ से मान लो कि एक होता है, एक हर एक सेक्टर से एक एक थोड़ा थोड़ा बहुत तो एक्सट्रूडर्स में से मटेरियल आता है, फिर बीच में एक ब्लो होता है, मतलब कि वहाँ से ब्लोअर होता है। सो वहाँ से एक बबल जनरेट होता है, फिर वो बबल को यहाँ से ऊपर से एक वाइंडर होता है, वो वाइंडर वहाँ से वो बबल को ऐसे फ्लैप करके वो ले लेता है। फिर यहाँ पे उसके साइड्स में 2 ट्रिम रहते हैं, ट्रिमर्स, तो वो उसको कट करते हैं। फिर वो जो 2 अलग स्प्लिट हो गए, उन दोनों को वाइंड करके प्लास्टिक के रोल्स हो गए वो। फिर वो रेडी है आगे प्रिंटिंग्स के लिए जाने के लिए। ठीक है, फिर उस पर प्रिंटिंग होता है, फिर प्रिंटिंग के बाद वो जाते हैं पैकेजिंग के लिए। तो समझ गया। वो ये सब अलग अलग मशीन बिल्डर्स रहते हैं कि कोई सिर्फ प्लास्टिक के रोल्स ही बनाएगा, वो भी ग्रेड में जिसको जैसे चाहिए वैसे। फिर आगे होता है कि प्रिंटिंग का पोर्शन, तो वो मशीन बिल्डर्स होते हैं, वो सिर्फ प्रिंटिंग पे फोकस करते हैं समझ गया। कि ये रोल को कितने मैक्स स्पीड पे कितना हम एफिशिएंटली काम निकलवा सकते हैं वैसे। फिर पैकेजिंग का पोर्शन आता है कि मान लो कि ट्यूब पैकेजिंग है या फिर ग्रेट, ओके। सो दर्शन, आप ये बता रहे थे कि व्हाट टाइप ऑफ रोबोटिक पार्ट्स और व्हाट टाइप ऑफ रोबोटिक आर्म्स और व्हाट टाइप ऑफ रोबोटिक सिस्टम्स आर यू करंटली वर्किंग ऑन? सो करंटली मतलब डिपेंड करता है एप्लीकेशंस पे। तो कोडियन है, पिक एंड प्लेस रोबोट्स। ओके, फिर मैग्नेटिक लेविटेशंस के ऊपर एक प्रोडक्ट है 60 करके, ओके, तो वो भी चीज़ें यहाँ से वहाँ करने के लिए यूज़ होता है। तो दैट काइंड ऑफ रोबोटिक एप्लीकेशंस। यार रियली गुड कि आप इतना इन डेप्थ में काम करते हो स्पेसिफिकली विद मशीन ऑटोमेशन, एंड यू आर वर्किंग एग्जैक्टली विद इंडस्ट्री 4.0। अभी 5.0 तो अभी आ ही जाएगा, मतलब आ ही चुका है वैसे, तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है, लेकिन यू करंटली वर्किंग विद इंडस्ट्री 4.0 एंड दैट इज रियली गुड। And with your level of experience, getting into that might be a bit difficult to start with, क्योंकि लोगों को exactly पता नहीं कि पहुंचना कैसे है। They have heard of buzzwords. These are all, I would consider this as buzzwords. कि भाई मेरे को रोबोटिक्स सीखना है, मेरे को जनरेटिव एआई सीखना है, मेरे को लामा सीखना है, मेरे को मतलब इंडस्ट्री 5.0 में जाना है, इंडस्ट्रियल IoT करना है मेरे को। ये 1-2 चीज़ें वो सुन लेते हैं यूट्यूब से, गूगल से, 1-2 जगह से वो लोग सुन लेते हैं, 1-2 लोगों को सुन लेते हैं, उसके बाद वो घुस जाते हैं, एंड उनको पता ही नहीं अभी स्टार्ट कहाँ से करना है। देयर इज नथिंग अवेलेबल ऑल्सो। तो दर्शन, आई वॉन्ट टू नो कि यार कॉलेज से लेके अभी कंपनी तक जो आप पहुंचे हो, उसकी जर्नी कैसे रही है? मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम ऑब्वियसली जीरो, एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मैंने भी स्टार्ट किया, आपने भी स्टार्ट किया है, सबने जीरो से स्टार्ट किया है, लेकिन वो रोड मैप किसको पता नहीं है कि करते कैसे हैं। अभी आप ABB में हो, विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रोबोटिक्स कंपनी अभी के लिए, तो सो गेटिंग इनटू देयर माइट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड सपोर्ट के बिना तो मुश्किल है। तो व्हाट आर द बेसिक सपोर्ट्स दैट यू रिक्वायर्ड, जो शायद आपको इंटरनेट के थ्रू मिला, कि शायद आपको कुछ कोर्सेज से थ्रू मिला, कुछ बुक्स के थ्रू मिला, दैट आई वुड वांट टू नो, बिकॉज आई वांट टू नो हाउ यू वेंट टू दैट ड्रीम कंपनी ऑफ योर्स। ओके, सो कॉलेज से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मैंने बीटेक किया बेसिकली इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। ओके, सो
पहले पहले तो जो नॉर्मल फर्स्ट फाउंडेशन ईयर सबका सेम ही रहता है, तो वहाँ पे पता चला कि ठीक है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वो सब भी एक पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड ईयर से सबके स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स वगैरह स्टार्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर्स वो सब चीज़ें आई, ठीक है। फिर पता चला कि इससे ऐसे इंटरेक्शन कर सकते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे तो बीच में कोविड आ गया था। अरे आप कोविड बैच के हो? हाँ, नहीं कोविड बैच मतलब कि अच्छा। बीच के एक साल में जो सेकेंड से थर्ड ईयर का फेज था वहाँ पे कोविड था बीच में, तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें ज़्यादा ऑफ कोर्स वो तो बंद ही पड़ गया होगा। सब लोग तो हंसी मजाक ही करते थे। यस, सो एक्चुअली वो टाइम अगर मैं मानूँ तो एक गोल्डन टाइम भी था, क्योंकि उस टाइम पे ना तो कॉलेज का कुछ था, तो देखा कि क्या ही कर सकते हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह का बहुत चल रहा था उस टाइम पे। तो मेरे को पता था कि सीमेंस करके इसके कंट्रोलर्स वगैरह होता है, तो मैंने उसका जस्ट देखा बेसिकली साइट पे जाके। तो वो लोग जो उनका सॉफ्टवेयर है TIA पोर्टल करके है। ये सीमेंस के बारे में आपको बताया किसने? कॉलेज ने बताया कि आपने खुद से सर्च किया था? मतलब कि जो PLC वगैरह के सब्जेक्ट्स आए थे ना, तो उस टाइम पे कॉलेज में भी लैब रहता है। एंड दिस इज व्हिच ईयर ऑफ कॉलेज? थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज। ओके। सो वहाँ पे रहता है लैब्स वगैरह, और उससे पहले भी मैंने बताया जैसे कि मेरा भाई था, तो वो जैसे भी काम करता था, तो वहाँ से भी मेरे को थोड़ा बहुत पता था पहले से कि हाँ ऐसे सीमेंस करके भी हैं, उसके भी PLC वगैरह। सो वहाँ से फिर पता चला कि नहीं, इसका एक TIA पोर्टल करके सॉफ्टवेयर है, वहाँ से सब इसका कोडिंग वगैरह सब होता है। तो वो कोर्स मैंने उस टाइम पे देख लिया कि फ्री में था, तो कोविड का टाइम था, तो वो कोर्स मैंने वहाँ से ख़त्म कर लिया। फिर उसके बाद ऐसे और 2-3 कोर्सेज देखने का ट्राई किया। फिर उसमें एक थोड़ा बहुत जावा सीख लिया, फिर थोड़ा बहुत बेसिक पाइथन सीख लिया, तो वो सब उस टाइम पे चल रहा था फ्री कोर्सेज वगैरह का। फिर जैसे ही वो ख़त्म हुआ कोविड का एरा, ठीक है, फिर मैं गया एक कंपनी थी थैमिस ऑटोमेशन करके। थैमिस ऑटोमेशन, यस। सो वहाँ पे मैं मैन्युअली खुद से ही अप्रोच किया था कि मुझे इंटर्नशिप अगर मिल सकती है तो। सो वहाँ पे मतलब उन्होंने पूछा कि आपको ऐसा कुछ स्टाइपेंड वगैरह नहीं मिलेगा, पर मैंने बोला ठीक है मेरे को चलेगा, मेरे तो को आपने बिना स्टाइपेंड के काम किया है? हाँ, मतलब मैंने टोटल अब तक मेरे करियर में 4 इंटर्नशिप्स करे हैं। ओके। बिफोर यू वेंट इनटू ABB? No, before that I was in Reliance. Oh great. Yeah, so nice. placement मुझे Reliance में मिला था। So उसके पहले मैंने 4 इंटर्नशिप्स करे थे। तो Reliance मतलब ABB से पहले आप Reliance में थे? हाँ। Oh wow, okay, so 2 major MNCs, very nice. तो और Reliance से पहले you did 4 internships and 4 internships सारी कोविड के दौरान ही थी? नहीं। अच्छा। कोविड के ड्यूरिंग पे तो एक भी नहीं थी। ओके। लेकिन कोविड के बाद थी, चारों के इमीडिएटली बाद, क्योंकि वो ऑफलाइन आपको बोला था कि आपने ऑनलाइन किया था? ऑफलाइन एक्चुअली एक तो मैंने 15 दिन की कर ली थी। ओके। फिर उसके बाद एक थी वो GTU का ही एक था स्टार्टअप, बॉश रेक्सरॉथ का। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, तो बॉश रेक्सरॉथ भी एक बड़ी कंपनी। ग्रेट। तो उनका कोलैबोरेशन था, और वहाँ पे भी कुछ PLC, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, सेंसर्स, उसका बेसिक नो हाउ वगैरह, उसका भी एक मतलब हाँ, तो वहीं से मतलब रोबोटिक्स की फंडामेंटल शायद आपने वो बॉश रेक्सरॉथ की ही इंटर्नशिप से आपने किया होगा, क्योंकि और वो दैट्स द फंडामेंटल। या और वो एक्चुअली कैसा था कि GTU का ही था, मतलब कि मेरे जो यूनिवर्सिटी है मेरी उसी का था, तो उसमें मेरे को NOC वगैरह भी उतना कुछ नहीं। तो आपका बढ़िया हो गया, क्योंकि अभी तो अलाउड ही नहीं है यार, मतलब हाँ, नहीं मतलब अभी थोड़ा वो झमेला बढ़ गया है, NOC लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वैसे। यस। सो वहाँ से मेरे को उसका बेसिक्स मिल गया। फिर एक फाइनल ईयर में तो सबको रहता ही है, या प्रोजेक्ट करो या फिर इंटर्नशिप करो। ऑफ कोर्स। तो फाइनल ईयर में भी मुझे Erasmus+। तो ये इंटर्नशिप जो आपने बोला, ये कॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया कि आपने खुद से निकाला? नहीं, मैंने खुद से ही। तो कैसे निकाला, मतलब हाउ डिड यू सर्च फॉर एन इंटर्नशिप? व्हाट डिड यू डू? पहले क्या गूगल पे गए, आई वांट? नहीं, वैसे नहीं। तो फर्स्ट इंटर्नशिप में तो डेफिनेटली मेरे भाई ने मुझे ओके, सो ब्रदर हैज बीन अ रोल मॉडल फॉर यू? यस। ग्रेट, वेरी नाइस। सो उसी ने बताया कि ऐसे इधर है, इधर जाओ। तो जब आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, तो देन यू हैड अ रिज्यूमे ऑफ योर ओन? जब स्टार्टिंग में फर्स्ट
हाँ उस टाइम पे मतलब ऐसा कुछ पता नहीं था कि रिज्यूम वगैरह कुछ हाँ, ऐसा क्योंकि रहता हाँ, है। yes, yes. लेकिन फिर वहाँ पे गया, फिर मेरे को बोला कि नहीं ऐसे रिज्यूम वगैरह भी बनाओ हाँ, आप। तो पहले एक बेसिक सब आपने प्रोफाइल बना दिया था, उसके बाद जाके हाँ आपने हाँ सीखा कि मतलब रेज्यूमे क्या होता है, क्योंकि हाँ, कॉलेज में तो ये सब तो कोई सिखाता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वेरी ट्रू, डेफिनेटली। वेरी ट्रू। तो ये जो 4 इंटर्नशिप थी सब लगातार ही थी, एवरीथिंग वाज बैक टू बैक? तो नहीं, कॉलेज वैसे कैसे तो मैनेज हो रहा था, लाइक हाउ डिड यू मैनेज कॉलेज विद द इंटर्नशिप? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। एक्चुअली फर्स्ट मैंने जो इंटर्नशिप करी थी वो 15 दिन की ही थी, और वो कैसा था कि उस टाइम पे कोविड जस्ट खत्म हुआ था, तो कॉलेजेस में भी वो हो रहा था कि नहीं आप आओगे रेगुलर, या मतलब उनको भी वो। आपका वो अटेंडेंस था क्या मेंटेन करने के लिए 70-75%? हाँ 75 वाला तो था 75% ही। भी था? हाँ कमाल है यार, मतलब 75% अटेंडेंस के साथ भी आपने इंटर्नशिप हाँ, मैनेज कर मतलब वही ना कि वो जो हाँ। कोविड का टाइम आ गया हाँ, ना, तो हाँ, उसी हाँ। की वजह से वो उसमें अटेंडेंस वगैरह तो उतनी उनकी मैनेज नहीं होती होगी, तो उसका ही बेनिफिट ले लिया बेसिकली। एब्सोल्युटली। हाँ नाइस, वेरी नाइस। तो एक बात बताइए, मतलब फैकल्टी हैज बिन अ गुड रोल इन योर कॉलेज लाइफ, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि दे डू नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद देयर हाँ, फैकल्टीज। वो नहीं फैकल्टीज बोलती है कि यार आपको एग्जाम्स है, एग्जाम्स में आ जाओ, और फैकल्टीज उसी लिए ही फेमस है बस। हाँ जो पढ़ाई 10 साल पहले चल रही है, जो 12 साल पहले चल रही है, वही पढ़ाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। एंड जिस तरीके से पढ़ाते हैं इतनी बोरिंग होती है। तो फैकल्टीज आपको एक्चुअली में इन्फ्लुएंस की, क्योंकि सब लोग ना थोड़ा सा ना ऑफसेट हो जाते हैं जब फैकल्टीज की बात आती है। नहीं नहीं, एक्चुअली फैकल्टीज में कैसा है कि मेरे अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो हाँ, हाँ। मेरे जो भी फैकल्टीज थे ना वो Okay. थोड़े मतलब कि Decent थे? हाँ तो decent आपको थे। अच्छे मिल गए फिर? हाँ क्योंकि उनको ना मैं मतलब डायरेक्ट बोल ही देता था कि अच्छा। सर देखो मैं यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन मैं सामने ये कंपनी में यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ, अच्छा, so और they वहाँ were पे मेरे को supportive इतना, towards you. हाँ वहाँ पे Okay. मेरे को ये सीखने मिल रहा है। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि वाइवास चल रहे थे, ठीक है, Okay. तो वो जो कोई भी XYZ सब्जेक्ट था, मेरे को तो अभी तो याद नहीं है, हाँ, हाँ। लेकिन वो सब्जेक्ट के वाइवा में ना उन्होंने मेरे को पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला सर ये तो नहीं पता। फिर उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया ठीक है तुम्हें जो आता है वो बताओ, ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है सर, मैंने अभी रिसेंटली ये इंटर्नशिप की है, हाँ। तो वहाँ पे मैं इतना इतना सीखा। तो उन्होंने वो शॉक हो गए कि भाई अच्छा तूने मतलब ये सब और ये कर आप रहा था सेकंड तू थर्ड वैसे। ईयर में बैठ के अभी इंटर्नशिप फोड़ रहे हो, तो बहुत बड़ी हाँ बात है मतलब ये तो। थर्ड ईयर की बात है, थर्ड ईयर के में 6 सेम की बात है। ओके ओके। तो वहाँ पे उनको थोड़ा वो लगा कि क्योंकि आपके बाकी के जो दोस्त लोग थे वो लोग तो कुछ नहीं किए होंगे अभी तक, तो इतना ज्यादा एक्चुअली इंटर्नशिप। 6 सेम में तो किसी ने नहीं किया था, लेकिन लास्ट ईयर में तो सब करना ही था वो तो सबको। मैंडेटरी है हाँ, सबका so करना, उसमें तो हमारा भी सबको तो करना वही ही था। था। हाँ, तो आपने प्रोजेक्ट नहीं लिया था, आपने इंटर्नशिप लिया था? हाँ मतलब मोस्टली सबने इंटर्नशिप से लिया था, Okay, क्योंकि good, प्रोजेक्ट कैसा रहता है कि क्या ही बनाएंगे उसमें, आर्डिनो उनो लगे यही जो नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे कोई भी बेसिक आजकल से। तो वही चल रहा है। हाँ बट बेसिक से आजकल तो project है। चैट जीपीटी आ गया, तब तो चैट हाँ जीपीटी तो था ही नहीं, तो मतलब खुद से ही सब कुछ करना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, मेरे को भी याद है, मेरे सीनियर्स का ना हम ना वो छाप लेते थे जो उन्होंने पहले वाला प्रोजेक्ट किया, और वही Yeah, correct, छिपा correct. के दे देते थे बस। दैट इज व्हाट यू यूज्ड टू डू। तो लाइक काफी सही। बट फैकल्टीज, मेरे लिए तो फैकल्टीज हैव प्लेड अ वेरी बिग रोल। तो एंड आपके फैकल्टीज अगर हेल्प नहीं करते तो अभी तक तो आप इतना लेवल तक भी पहुंच नहीं पाते। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। बट या योर ब्रदर आई गेस वेरी बिग रोल मॉडल। या ग्रेट ग्रेट। एंड फैकल्टीज भी, अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप उनके पास भी जाओगे, ठीक है, उनको जस्ट बताओगे कि नहीं सर मुझे एंड दे वुड बी अंडरस्टैंडिंग ये करना है, तो वो आपको, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई फैकल्टी को आप जाके बोलोगे कि सर मेरे को ये सीखना है तो इसके लिए मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो वो मना करेंगे ऐसा तो मेरे को नहीं लग रहा है। शायद सपोर्ट कर दे, या फिर मतलब वो अभी है कि आप अप्रोच करते हो नहीं करते हो, वो आपके ऊपर है। यस यस। तो वो आपको अप्रोच करना पड़ेगा बेसिकली। एब्सोल्युटली, आई गेट द पॉइंट। चलो फैकल्टीज भी ठीक है, और इंटर्नशिप भी आपने कर ली, लेकिन आजकल में मैं अगर आपको फैक्ट बताऊं, हम जितने भी लोगों को आजकल देखते हैं जो अभी भी फ्रेश कॉलेज से ग्रेजुएट्स हैं, कि अभी जिस फ्रेश कॉलेज के अंदर है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे, करेक्ट, दीज पीपल दे आर सो मच आफ्टर स्टाइपेंड्स। उनको पैसा बहुत चाहिए। दे वांट कि यार आप अगर मेरे को मंथली स्टाइपेंड नहीं दे रहे हो तो भाई मैं तेरे पास काम नहीं करूंगा। वेरी वेरी सिंपल। आप एट दैट एज, जब आपको ही पता है कि मतलब यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, मतलब आप खुद से निकाल रहे थे, यू आर फाइंडिंग आउट योर कंपनीज, ऑब्वियसली सपोर्टिंग फैक्टर तो थे ही, बट यू आर डूइंग इट। बट विदाउट स्टाइपेंड हाउ डू यू, मतलब हाउ डू यू जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि मतलब आजकल में जो स्टाइपेंड का जो हवा आ गया है, जहाँ पे एवरीवन वांट्स स्टाइपेंड, हाउ डिड यू डू इट कंप्लीटली अनपेड, दैट टू फॉर 4 इंटर्नशिप्स? मतलब एक इंटर्नशिप शायद मैं गेस कर रहा हूँ 2 से 3 महीना का होगा। नहीं,
मतलब फर्स्ट इंटर्नशिप था वो कुछ 15-20 दिन का था। अच्छा, ओके ओके। सेकंड जो था वो तो 21 डेज का था, और Okay. वो जो बॉश वाला मैंने जो बोला अच्छा, वो तो तो you pay- started मतलब with कि less. उसके लिए तो मैंने पे किया था। तो आपने एक पे करने के बाद आपने हाँ। प्रोग्राम किया था? ओके, सो इट वाज लाइक अ पेड इंटर्नशिप। या समझ गया। उसके बट बाद मतलब वो मेरा ऐसा थिंकिंग था कि नहीं भाई, मतलब ये बहुत ही कम लोग होंगे जो ये चीज़ भी सीख रहे होंगे। सो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये ठीक है, इसके लिए वर्थ इट है, मेरे लिए तो वर्थ इट है, तो करते हैं वैसा यार करके एक बात मैंने। बताओ यार, माँ बाप को कन्विंस करना इजी हो जाता है जब पेड इंटर्नशिप लेते हो आप? लेकिन पेड इंटर्नशिप में भी ऐसा तो नहीं होता कि आपसे भाई 50,000 मांग लिए। Yeah. राइट, वो जस्ट एक बेसिक बट मिनिमल एट द टाइप एंड का ऑफ द डे अमाउंट होता है। पेरेंट्स थिंक कि मतलब इतना जल्दी हो गया, व्हाई आर यू डूइंग एन इंटर्नशिप, व्हाई आर यू गोइंग इनटू दैट फ्लो, अभी आप पढ़ाई करो, सीजीपीए के लिए फोकस करो। आजकल तो यही चल रहा है। लाइक हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स, लाइक वेयर दे अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वर डूइंग? लाइक ये अगर मैं बोलूँ तो पेरेंट्स को तो उनको तो वो सब पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, मतलब कि इंटर्नशिप्स भी कर रहा है या कॉलेज जा रहा है, वो उनको तो ऐसा कुछ कॉलेज भी जरा ये भी नहीं पता था। मतलब ऐसा नहीं, कॉलेज जा रहा था वो तो पता ही है। अच्छा। पर मतलब वो बोलते हैं ना कि ठीक है, अगर इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे हैं तो अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है, तो गॉट इट। अंडरस्टैंडेबल है तो थोड़ा। यू हैड अ गोल कि मतलब मुझे बस एक्सपीरियंस ही करना है अभी के लिए, दैट इज व्हाट योर गोल वाज? हाँ। ओके। एट अ वेरी अर्ली स्टेज, मतलब यू नेवर वांटेड स्टाइपेंड बिकॉज मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि राइट नाउ द सिचुएशन इज दैट नो वन इज रेडी टू वर्क विदाउट स्टाइपेंड्स। लाइक व्हाट फोर्स्ड यू टू डू दैट? एक्चुअली वही चीज़ है ना कि अगर आप सोचोगे कि मुझे स्टाइपेंड चाहिए, ठीक है, तो मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको स्टाइपेंड चाहिए, ठीक है, कंपनीज को भी ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे कि ठीक है स्टाइपेंड दे के काम करवाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई कंपनी के पास जाओगे, ठीक है, आपको सीखना है, ठीक है, आप बोलोगे कि मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे बस सीखना है, ठीक है, तो आप वो मोटिव से जाओगे ना, तो उसको भी लगेगा कि भाई ठीक है, मुझे तो कुछ देना नहीं है, ठीक है, आ जा भाई तू। तो वैसे आपको जल्दी इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे अगर वो चीज़ अगर आप देखें। गॉट इट गॉट इट। इफ यू वांट टू गो फॉर एक्सपीरियंस बेस। हाँ, मतलब गुजरात में तो डेफिनेटली तो डेफिनेटली मिल सकता है। हाँ, और गुजरात में तो डेफिनेटली। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा आई वांट टू नो अ लिटिल बिट इनटू एबीबी, ठीक है? तो एक बात बताइए, लाइक योर जर्नी इन एबीबी, लाइक यू सेड दैट यू वर वर्किंग इन रिलायंस बिफोर, करेक्ट? तो फ्रॉम रिलायंस टू एबीबी का जो शिफ्ट था, हाँ, मतलब फ्रॉम अ वेरी बिग कंपनी, मतलब फ्रॉम इंडियाज बिगेस्ट कंपनी या टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रोबोटिक्स कंपनी, योर रेज्यूमे इज तो फॉर फ्लाइंग कलर्स। मतलब इतना प्यारा है आपका रेज्यूमे, आपकी पोर्टफोलियो इतनी सही है। तो फ्रॉम रिलायंस टू एबीबी, व्हाट मेड यू शिफ्ट इट? मतलब व्हाई डिड यू शिफ्ट फ्रॉम रिलायंस टू एबीबी एंड व्हाट हैज एबीबी चेंज्ड इन यू दैट रिलायंस कुडंट? दैट्स द रीजन आई थिंक आपने शिफ्ट किया था। सो फर्स्टली मेरा जो पहले से गोल था कि मुझे जाना है मशीन ऑटोमेशन या ऑटोमेशन में, ठीक है, तो उसके लिए ही मैंने ये सब इंटर्नशिप्स वगैरह करे, उसी डोमेन में मैंने नॉलेज गेन किया, ठीक है। अभी उसके बाद क्या हुआ कि प्लेसमेंट्स का सीजन चालू हुआ, उसमें रिलायंस आया। अच्छा। और वहाँ पे हमारे कॉलेज में ऐसा था कि भाई एक बार किसी कंपनी ने आपको सिलेक्ट कर लिया, फिर सेम होता है, जानबूझ के फंसा देते हैं वो। इट इज अ टैक्टिक सच दैट वो सेफगार्ड कर सके। प्लेसमेंट को अपना ना रिकॉर्डिंग दिखाना होता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी बिग मार्केटिंग गिमिक। वो लिखते हैं 50 से 60 लाख रुपए उनको मिलता है, लेकिन एट द एंड इट इज ऑल 4 to 5 lakhs एवरेज ही मिलता है। करेक्ट। यू आर एन ईसी स्टूडेंट एज वेल, आई एम आल्सो एन ईसी स्टूडेंट। हमारे एवरेज भी 5 से 6 लाख ही था, जबकि दिख रहा था कि भाई 1.5 करोड़ का ऑफर मिलेगा। राइट। या सो या टेल मी। वो भी वैसा ही था कि अगर एक कंपनी ने आपको सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो उसको सिलेक्ट करो या फिर रिजेक्ट करोगे तो फिर नेक्स्ट में बैठने नहीं मिलेगा। सो डिड कॉलेज हेल्प यू इन मेकिंग द रिज्यूमे, कि वो तो आप खुद से ही किए थे? नहीं, वो तो मैंने खुद से ही किया था। ओके। पर मतलब इवन लिंक्डइन वगैरह भी सब कुछ खुद से ही किया था? हाँ, लिंक्डइन वगैरह भी मैंने खुद से ही किया था। अच्छा, सो व्हाट वाज योर सोर्स? कहाँ से सीखा? ये भैया से ही सीखा कि अलग? नहीं, मतलब वो तो उतना तो मतलब अंडरस्टैंडिंग हो ही गया था कि भाई ठीक है, रेज्यूमे बनाना है, लिंक्डइन का प्रोफाइल। एंड बिफोर यू वेंट इनटू रिलायंस, मतलब ये जो 4 इंटर्नशिप आपने किया था, उसमें से हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स डिड यू डू? मतलब हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू सक्सेसफुली क्वालिफाई इनटू अ रिलायंस बेस्ड इंटर्नशिप? लाइक इतना बड़ा कंपनी में क्वालिफाई करने के लिए, कि इंटरव्यू में पास करने के लिए, वो आपकी पोर्टफोलियो कैसी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी योर रिज्यूमे? सबसे पहले तो बेसिक अगर बोलूँ तो मैथ्स एप्टीट्यूड, वो तो आपको कोई भी प्लेसमेंट कंपनी आएगी वो तो आपको क्रैक करना ही पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी फास्ट।
यस यू हैव टू बी फास्ट फॉर दैट. ओके. एंड उसके बाद अगर मान लो टेक्निकल इंटरव्यूज़ वगैरह भी आते हैं, तो अभी मान लो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, ठीक है, कल को अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं, कोई कंपनी आएगी, कोई XYZ बंदा आएगा, ठीक है, वो बंदा आपको बोलेगा कि ठीक है बताओ आपने कॉलेज के 4 साल में क्या किया, ठीक है, आप क्या बोलोगे? मैंने तो ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए वो सब्जेक्ट्स पढ़े, वाइवा लिए, फिर उसके बाद मिड CGPA के लिए पढ़ाए मैंने, CGPA के लिए एक दो प्रोजेक्ट्स कर लिए क्योंकि जरूरी था, बस मैंने तो एंजॉय किया. हाँ मतलब कि प्रोजेक्ट्स किए, ठीक है. फिर उसके पास पूछने के लिए क्या रह जाएगा, ठीक है भाई आपने प्रोजेक्ट्स किए, प्रोजेक्ट्स में आपने क्या किया, फिर आप बताओगे कि आर्डिनो पे कुछ किया या ऊनो पे कुछ किया या पाइथन वगैरह पे कुछ गेम वगैरह बना दिया. वो तो यूज भी नहीं होता आजकल इंडस्ट्री में. आर्डिनो कौन यूज करता है? कोई भी. नो वन यूजेस आर्डिनो. हाँ. सो वैसा ही मतलब कि वो चीजें होती है ना कि इजीली अवेलेबल है नेट पे या उसके एक बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वुड रिकमेंड कि ये सब अच्छी बात है. सो वही आप बेस एक बता दोगे उनको. फिर एक और कैंडिडेट आता है, वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे 2 जगह पे इंटर्नशिप करी है, ठीक है. तो वो बोलेगा ठीक है अच्छा तूने 2 जगह पे इंटर्नशिप करी है, पहली कंपनी में तूने क्या किया? तो वो मतलब जो भी इंडस्ट्रियल वर्ड्स वगैरह जो भी होगा उसको उतना तो पता होगा, वो 10 दिन गया होगा, ठीक है, तो 10 दिन में उसने कुछ तो देखा होगा, ठीक है, तो वो उसकी चीज़ वो बोलेगा. फिर वो बताएगा कि वो कंपनीज का अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका मैं थोड़ा बहुत इतना पार्ट था, मेरे को उतना तो उन्होंने इन्वॉल्व नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बहुत. So you have to be at the end of the day you have to be honest. किया है तो बोल दो, नहीं किया है तो मुंह पे बोल दो. लोग ये जो ओवरशूट करते हैं ना, दे स्पीक अ लॉट कि मतलब आई हैव डन दिस एंड दैट इज व्हेन द इंटरव्यू रिजेक्ट्स देम. आई थिंक दैट इज द केस. दैट माइट बी. एंड एक चीज वो भी है, अगर मान लो उस टाइम पे आप निकल गए, ठीक है, आपका जॉब रोल आया, आपको एक्चुअल फील्ड में जाना है, वहां पे तो करना पड़ेगा, तब कहाँ जाओगे? एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हेन तब आप ही फंसोगे, राइट? सो वो भी एक चीज है जो अकाउंट करनी चाहिए. करेक्ट. एंड उसके अलावा मतलब वही मैंने जो बोला कि इंटर्नशिप्स एक वही चीज़ है जो आप कॉलेज के ड्यूरिंग में कर सकते हो, या तो फिर कोर्सेज. हाँ, एक वो भी एक बताना रह गया कि मैंने कोर्सेज भी करे थे. एक बोल्ट IoT करके एक प्लेटफॉर्म है, ओके, वहाँ पे भी मैंने IoT का कोर्स वहाँ से किया था. वो लोग बेसिकली मतलब कि उनका एक है स्ट्रक्चर टाइप, वो एक हार्डवेयर भी देते हैं, वहाँ से पाइथन वगैरह बेसिक जो भी है वो बता देते हैं. फिर वो वहाँ से बेसिकली ESP32 वाईफाई मॉड्यूल. यस, वो तो बेस लेवल IoT में काम करते हैं. ओके. और व्हाट टाइप ऑफ कोर्सेज डिड यू डू मोर बिफोर रिलायंस? उसके पहले एक ये जो इंडस्ट्रियल का था PLC न्यूमेटिक हाइड्रोलिक 21 डेज वाला जो था. हाँ. यस. उसके बाद एक सीमेंस का जो TIA पोर्टल वाला. ओके. ग्रेट. तो मतलब कोर्सेज भी यू हैव एक्चुअली डन. वो सर्टिफिकेशन इज एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट. ये सारी कोर्सेज का ये लोग देखते हैं एक्चुअली. अगर रिज्यूम अगर आप देखोगे, आप एक रिक्रूटर हो, ठीक है, आपके सामने मैं 2 रिज्यूम रखता हूँ, ठीक है. एक रिज्यूम है जिसमें इंटर्नशिप्स है, कोर्सेज है, ठीक है, और एक और रिज्यूम है जिसमें बस प्रोजेक्ट के कोर्स, मतलब कि जो प्रोजेक्ट बेसिकली मैंने जो आपको बताया कि नेट से देख के कर लिया ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर चलो मान लो खुद से भी कुछ डेवलप करने का ट्राई किया और वो भी कर लिया, ठीक है, फिर भी वो जस्ट एक प्रोजेक्ट दिख रहा है और सामने यहाँ पे इंटर्नशिप्स और कोर्सेज दिख रहे हैं, ठीक है. और मान लो ऐसा भी नहीं है कि सारे फेक है, फिर वो उसके बारे में आपको इंटरोगेट करेंगे, तो वो आपको काउंटर करना फिर आना चाहिए, राइट? सो आप किसे सिलेक्ट करोगे? Correct. I will obviously select the person who knows all these things. Yeah, the second guy who obviously holds the knowledge, yes, right? Yes, absolutely. Yeah. So वो एक चीज़ है कि रिक्रूटर्स आजकल वो भी देखते हैं. तो ये मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू देने के बाद ही आपको इतनी नॉलेज हुई? क्योंकि कॉलेज में तो स्टार्टिंग से तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेन दिस मच अमाउंट ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस. यूजुअली व्हाट हैपेंस, व्हाटएवर आई नो, पीपल नो, yes, but they are not able to speak. Yeah. Because they are not able to speak, they are not doing very good in the interview, and that is the reason they get rejected. And then what they do is they blame the company. Ki that company that company has rejected me, that is a bad company, and then they post their reviews. Yes. So who trained you for the interviews? Like, did you see YouTube or did you see different platforms for training, or what did you do? एक्चुअली वो तो मेरे केस में तो एक्सपीरियंस से ही मेरे को थोड़ा बहुत पता चला कि भाई इंटरव्यू के लिए भी, मतलब इंटर्नशिप्स के लिए भी मैं जाता था, तो वहाँ पे भी एक छोटा सा इंटरव्यू काइंड ऑफ. तो धीरे-धीरे यू पिक्ड अप. हाँ, सो धीरे-धीरे मतलब कि रिलायंस में भी वहाँ पे राउंड्स पता चले कि भाई एप्टीट्यूड है, फिर टेक्निकल है, फिर HR है, वैसे कर करके. ओके, तो ये तो इट इज़ वेरी क्लियर टू मी, ये तो कम्प्लीटली अंडरस्टूड है. नाउ
So tell me about the shift from Reliance to ABB. मतलब what exactly has happened? मतलब Reliance में तो you got into because one of the main reasons for it was कि also college भी था. Yes. अब आपको college से एक placement मिलता है, so you have the back of the college also. तो college भी थोड़ा सा आपको help करती है, college भी आपको support करती है, वो interview rounds भी easier हो जाते हैं. हाँ. Now Reliance तक तो ठीक था, it's fine. What about an off campus? क्योंकि Okay. ABB तो शायद नहीं आया था, राइट? आपके कॉलेज में ABB नहीं आया था. अगर ABB नहीं आया था तो Reliance से फिर ABB में जाना, what happened? Like what made you to go first? Why did you take this big step? Because it's a very different industry and ABB is a very different industry. So like what happened in your head कि आपने immediately decide किया ये? Okay. So जो शिफ्ट बोलूँगा मैं, पहले तो मैं मतलब श्योर नहीं था, प्लेसमेंट मिला, ठीक है. Obviously. वहाँ पे जस्ट रोल लिखा था कि भाई ठीक है आप इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर हो, ठीक है. अभी एग्जैक्ट रोल क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता था. मैंने 2-3 सीनियर्स को कांटेक्ट करा, उनको पूछा, तो उन्होंने बस ऐसा बोला हाँ ठीक है आ जाओ, चिल ही है, सब अच्छा ही है, ट्राई कर लो. हाँ ठीक है. तो एक्चुअल में तो उन्होंने कुछ उतना बताया नहीं. मैंने बोला वहाँ पे ऑटोमेशन होगा, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है वो सब भी है, आ जाओ. फिर वहाँ पे गया. फर्स्ट मंथ जो था वो तो ओरिएंटेशन वगैरह था. वहाँ पे तो एकदम अच्छे से ट्रीट करते हैं वो तो सब प्यार से ट्रीट करते हैं फॉर श्योर. तो सब एकदम अच्छे से ट्रीट करते हैं आपको. एंड देन उसके बाद ठीक है प्लांट्स सब दिखाया, फिर घुमा. उसके बाद एक एक प्लांट्स अलॉट किए. फिर वहाँ धीरे धीरे पता चला कि ओके यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐसे केमिकल से मैन्युफैक्चर होते हैं. फिर उसके बाद वो जो पूरा प्रोसेस फ्लो है उसको स्मूथ रखना है, उसके लिए जो भी मेंटेनेंस वगैरह है वो सब आपको करना है. और उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि आपको खुद से जाके करना है, आपको बस उनके जो परमिट सिस्टम्स है तो वो सब हैंडल करना है. वैसे लाइक मतलब सिस्टम का काम करना है, सिस्टम को मेंटेन करके रखना है, यही है. कि जो भी वो मतलब कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो स्टॉक में है नहीं है, सैप वगैरह बेसिकली SAP वो सब वहाँ से इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ गया. तो लॉजिस्टिक्स भी थोड़ा थोड़ा आ गया होगा. अच्छा. फिर जो भी परमिट्स होते हैं जैसे कि हॉट वर्क कोल्ड वर्क वैसे वो वहाँ पे होते हैं परमिट्स वगैरह, तो वो परमिट्स निकालने हैं. बट आपने तो बोला कि आपका इंटरेस्ट लाइन तो ICs में था, EC में था, तो करेक्ट एग्जैक्टली. सो मुझे उसी में इंटरेस्ट था कि ऑटोमेशन फील्ड में ही जाना था. हुआ क्या कि जैसे जैसे टाइम गया मेरे को पता चला कि ओके, मेरे को लगा कि आगे और भी कुछ रोल मिलेगा इसमें, लेकिन एक पॉइंट के बाद पता चल गया कि नहीं यहाँ पे तो यही चीज़ें हैं और वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं अगर यहाँ पे रहना है तो ये चीज़ें ही रहेंगी, इससे बाहर का तो क्या ही आ जाएगा. तो वो मेरे को थोड़ा एक पॉइंट पे फील हुआ कि नहीं यार मैं जो मेरे को करना था, सेटल फॉर समथिंग लाइक दिस. यस, जो मेरे को करना था वो यहाँ पे नहीं है. तो मैंने तब से फिर स्टार्ट कर दिया कि दूसरी कंपनीज में मैं देखने लगा कि ठीक है मेरे को. व्हाट वाज योर प्रोसेस? अगर मान के चलो कि आई एम अ 23-year-old किड, 22 साल का 23 साल का बच्चा हूँ मैंने 3rd ईयर 4th ईयर के लास्ट में मैं हूँ और प्लेसमेंट मेरे को मिल गई है, ठीक है. लेकिन आई एम नॉट दैट वेरी मच हैप्पी विद द प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली पैकेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर प्लेसमेंट में वो अच्छी पैकेज नहीं मिली तो आगे जाके वो कमिट करना कॉलेज को, जैसे आपने भी बोला, वो ब्लॉक हो जाता है सिस्टम. तो वो तो इसके लिए आई फील कि एक बैकअप भी अगर आप रखना चाहो तो आपको ऑफ कैंपस तो करना ही पड़ेगा ट्राई. तो अगर आप ऑफ कैंपस में ट्राई करोगे दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप, क्योंकि यू आर गोइंग इनटू यू नो अनटैप्ड वाटर्स. आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या आने वाला है. सो व्हाट इज द स्टेप, लाइक हाउ डू यू गो इनटू ऑफ कैंपस प्लेसमेंट? आप करते कैसे हो? सो मैंने क्या करा बेसिकली, मैंने एक पहले तो स्टार्ट किया कि ठीक है मेरे को जो जिसमें जाना है वो है ऑटोमेशन इंजीनियर, ठीक है. मैंने सबसे पहले उसका सब देखना चालू किया लिंक्डइन वगैरह पे या फिर करियर्स वेबसाइट्स वगैरह पे. तो वहाँ पे बेसिकली जो भी इंटरव्यूज़ के लिए या फिर जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो सब पढ़ना चालू किया कि ठीक है इसमें ये रोल है, इनको ये चाहिए, और उसमें लेडर लैंग्वेज और वो सब बेसिक्स है. ठीक है, मुझे लेडर लैंग्वेज वैसे आता था, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे 4-5 महीने निकल गए रिलायंस में, तो वो भी मेरा थोड़ा फेड हो गया, यू नो लाइक बिकॉज आपका एग्जैक्टली क्या था? योर्स वर 9 to 5 जॉब इन रिलायंस? हाँ 9 to 5 ही था. तो व्हेन डिड यू स्टडी ऑल दिस थिंग्स? मतलब 5 PM के बाद? आफ्टर 5. हाँ. अच्छा, तो फिर पर्सनल स्टडी टाइम के लिए भी आप 2 से 3 घंटे देते थे ऐसा? हाँ. अच्छा यार,
कमाल है यार। तो ओके। वो सब भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, ऐसा नहीं मतलब कि डेडिकेटेडली हाँ, लेकिन बैठ ही बीच गए, बीच में लेकिन टाइम बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है तो वो सब चीज़ें भी चेक करनी चालू करी। एंड तो हाउ डिड यू लाइक गो एंड व्हाट डिड यू डू? मतलब पहले क्या सर्च किया था, मतलब कंपनी के वेबसाइट हाँ में चले मतलब गए? जैसे मैंने बोला कि जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह या लिंक्डइन हाँ। वगैरह पे देखना चालू किया, ओके। करियर्स वेबसाइट विजिट करके वहाँ ओके। पे देखना चालू किया कि क्या सो कहाँ योर कहाँ फर्स्ट पे। थिंग वाज गोइंग टू लिंक्डइन। ओके। हाँ वेरी नाइस। लिंक्डइन भी और करियर्स पेज भी, करियर्स मतलब हाँ वो पेजेस सब वगैरह। लिंक्डइन से ही मिलता है, सो Okay. लिंक्डइन या So LinkedIn में a person needs to have a very good profile in order to have the right job search and उसी हिसाब से फिर LinkedIn will push you, ऐसा है? ऐसा मान सकते हो 50% केस में, Okay. बट ऐसा भी नहीं है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, वो नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा Okay. भी नहीं है। Okay. वो क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, Okay. उसके हिसाब Okay. से। कुछ कंपनीज देखती भी नहीं है लिंक्डइन। Oh wow, okay, so very nice. तो उसके बाद फिर LinkedIn में अप्लाई, मतलब आपने देख लिया सब कुछ और देखने के बाद then you went to the career portal. For an example, you chose ABB के अलावा भी आपके पास दूसरे भी ऑप्शंस थे कंपनीज के जिसमें आपने अप्लाई किया था? सीमेंस में भी किया वहाँ था? पे भी अप्लाई किया था। Okay. फिर पर्टिकुलरली तो नहीं, पर किया, और बाकी सारे भी ऐसे है रोबोटिक्स और उसके। Okay, so you wanted to be in that mixed field of robotics हाँ also रोबोटिक्स and प्लस मशीन ऑटोमेशन। machine automation क्योंकि में। मशीन ऑटोमेशन का मैंने जो इंटर्नशिप से हाँ, तो सब लिया that था, will तो obviously boost वो you. मेरे को बूस्ट करेगा, मतलब कि मेरे पास एक बेस रहेगा कि एक्चुअली मेरे को ये तो आता है, उसके अलावा मैं आगे एक्सपांड करूंगा तो Great. थोड़ा थोड़ा। और वो ओपनिंग भी होनी चाहिए वो करियर पोर्टल में, हाँ ऑब्वियसली, yes, क्योंकि दैट इज द मेन थिंग। yes, yes, yes. अच्छा, नाउ आफ्टर यू, मतलब हाउ इज द एप्लीकेशन प्रोसेस? एक करियर पोर्टल में एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा था आपका एबीबी का? आपने कैसे किया? सो करियर पोर्टल में भी जैसा कि मैंने बताया कि रिज्यूम वगैरह अच्छे से एक तो रिबिल्ड करना था, क्योंकि मैंने क्या करा था कि मेरा हो गया रिलायंस में प्लेसमेंट, उसके बाद मैंने रिज्यूम अपडेट ही नहीं किया था। ओह, तो वो बिना रिज्यूम अपडेट, रिज्यूमे अगर आप अपडेट नहीं करते तो आपके चांसेस कम हो सकते हैं इंटर्नशिप के, ओह जॉब के? ओह वाओ, बिकॉज अगर मान लो कि मैं उस फील्ड में जाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे पास इंटर्नशिप्स में जो भी मैंने लिख रखा था रिज्यूम में वो सब तो था ही, पर एक वो भी है कि जो मैं करंट अभी जिसमें हूँ वो भी मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो वो भी मेरे को रिज्यूम तो कांस्टेंट रिज्यूमे अपडेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, वो भी इम्पोर्टेंट है एक। सो वो तो हाउ डिड यू अपडेट योर रिज्यूमे? कहाँ पे अपडेट किया? कोई ऐसा पोर्टल है जहाँ से किया था कि कैसे किया था? एक नॉर्मल resume.com करके है, ओके, वहाँ पे आप डायरेक्टली जाओ और वहाँ पे से टेम्पलेट्स वगैरह अवेलेबल थे? टेम्पलेट्स भी है, और लिखना जो है वो तो आपको ऑब्वियसली जो भी आपने करा है उसी के हिसाब से। ओह ग्रेट ग्रेट। तो वो जो फॉर्मेट है रिज्यूमे बनाने का, डिड यू लाइक यूज लेटेक्स? लोग लेटेक्स भी यूज करते हैं, ओवरलीफ वगैरह भी यूज करते हैं, तो लेटेक्स से मतलब आप एक फॉर्मेट कर देते हो रिज्यूमे का और वो कोड होता है, तो डिड यू यूज दैट कि आपने नॉर्मली ऐसे? नहीं, मैंने उतना बेसिकली उतना एडवांस नहीं किया था, लेकिन बेसिकली जो भी चाहिए वो सब एक सीवी का फॉर्मेट देख के आपने वो सीवी बना दिया था। ओके, सो यू गिव योर रिज्यूमे कि यू गिव योर सीवी? रिज्यूमे दिया था अपना? हाँ रिज्यूमे दिया था। ओह रिज्यूमे दिया था, और वो पोर्टल पे अपलोड ही किया था। और वैसे और उसके अलावा डू दे आस्क यू सम अदर डिटेल्स आल्सो, पर्सनल डिटेल्स हो गया कि प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह? यस यस यस, वो सब पोर्टल पे पूछते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन हो जाता है। एप्लीकेशन हो जाता है, तो एप्लीकेशन हो जाने के कितने दिनों बाद आपको फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया था, ये बताइए। ओके, सो मेरे पर्सनल में बताऊंगा, मैंने लाइक डाला था अक्टूबर एंडिंग में डाला था, और मुझे मेल आया था आफ्टर दिवाली, नवंबर के लास्ट वीक में आया था। अरे बाप रे! और वो भी एकदम इमीडिएट बताया था कि तो एक महीने से बहुत ज्यादा हो गया ये तो। हाँ, क्योंकि बीच में दिवाली आ गई ना, तो दिवाली के मतलब आप मान के चलो कि दिसंबर के महीने में आपको वो मेल आ गया था, करेक्ट? दिवाली के जस्ट बाद, नवंबर लास्ट वीक। और नवंबर लास्ट वीक, ओके ओके, वेरी गुड। ओके, तो मेल मतलब आया था रिगार्डिंग योर नेक्स्ट इंटरव्यू कॉल? हाँ, मतलब कि जो पहला इंटरव्यू। ओके, ऐसे कितने इंटरव्यू कॉल्स थे आपके? 3 थे इसमें। 3 इंटरव्यू कॉल्स, ओके। सो रिलायंस में भी 3 ही थे। ओह, पर वो तीनों एक साथ ही हो गए थे वैसे। अच्छा, रिलायंस में तीनों एक साथ ही इंटरव्यू हुए थे? हाँ, मतलब कि उसमें एप्टीट्यूड पहले हो गया था, एप्टीट्यूड का एग्जाम क्योंकि कॉलेज की तरफ से था। हाँ, कॉलेज की तरफ से था, तो वो HR टेक्निकल गाय वो सब एक साथ ही बैठ के वो वहीं से इंटरव्यू ले। गॉट इट। और इसमें अलग अलग था? इसमें अलग अलग था। ओके, तो टेक्निकल इंटरव्यू पहला था, उसके बाद कौन सा इंटरव्यू था? उसके बाद HR वाला इंटरव्यू था। और उसके बाद? उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर का। अच्छा, तो जनरली होता नहीं है, हाँ, बट
इसमें था कि इनके मैनेजिंग डायरेक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि अच्छी बात है। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। और इसके बीच में गैप कितना था ये इंटरव्यूज के बीच में? सबसे एप्लीकेशन से बात करें तो हाँ। ऑलमोस्ट 5 महीने तो हो गए थे 5 सिलेक्शन महीने तक। हाँ। भाई साहब, हम्म। तो ऑफ कैंपस में 5 मंथ्स तक एक इंसान को वेट करना पड़ता है, मतलब टू गेट द फाइनल रिजल्ट, इट्स लाइक दैट? अभी वो कैसा है कि कंपनीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, या फिर मैं मेरा अगर बताऊं तो मेरे केस में ऐसा हो सकता है कि मेरे जो भी मतलब मेरी जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल थी उससे जो मैं प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था उसमें जा रहा था वो पूरा ही डिफरेंट था। तो मेरे केस में हो सकता है कि वो लोग सोच रहे हो कि हाँ अच्छा। इनका नेक्स्ट करवाना है नहीं करवाना है, काइंड तो ऑफ। अगर 5 महीना मतलब इज अ वेरी बिग टाइम, मतलब आप बोल रहे हो कि मतलब साल का ऑलमोस्ट आधा ही हो गया। हाँ 6 महीने yes, yes, एक इंसान मतलब, तो यू हैव टू हैव बैकअप अगर आप ऑफ कैंपस के लिए प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो, नहीं तो फिर 6 महीने अगर आप बाई चांस रिजेक्ट हो गए तो फिर क्या करोगे? तो इन बिटवीन है कि आप अपनी स्किल अपग्रेड कर लो, तो वो लेकिन नहीं बहुत तो दूसरी पेशेंस इज अ company वेरी में बिग ऐसा- फैक्टर आई गेस। हाँ पेशेंस इज अ वेरी बिग फैक्टर आई यस, गेस। वेरी नाइस। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, वन क्विक क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड, ठीक है, अगर आप ओके हो तो। यस यस। तो आपने बोला कि यू वर डूइंग एन अनपेड इंटर्नशिप, 4 अनपेड इंटर्नशिप आपने किया। अनपेड इंटर्नशिप से द फर्स्ट पेड जॉब हाँ वाज रिलायंस? यस। Great. So what was your package that was offered to you in Reliance? Like what was the average that was offered to you? ओके सो एक बता देता हूँ रेंज। हाँ, रेंज ही बताओ मतलब मेरे। हाँ ठीक है, तो या 7 से 10 के बीच में। 7 से 10 के बीच में था। ओके, सो एंड दैट वाज द एवरेज दैट वाज हैपनिंग इन द कॉलेज, कि आपको एक अच्छा पैकेज मिला था? वो एक अच्छा पैकेज था। तो आपको एक बहुत अच्छा पैकेज मिला था हाँ। फिर। ओके, सो व्हाट वाज द हाईएस्ट पैकेज जो आपके कॉलेज में था? आपका ही था? अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। तो मतलब अगर आपका ही सबसे ज्यादा पैकेज था, तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपके कलीग्स थे, जो आपके क्लासमेट्स थे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे अकेले का, मेरे साथ नहीं, कुछ और भी सिलेक्ट हुए। तो व्हाट वाज योर एडमिशन कॉस्ट? आपने कितना पैसा दिया था एडमिशन के? मेरा तो गवर्नमेंट कॉलेज था, तो अच्छा, बच गए आप। पर सेमेस्टर कुछ हार्डली 3000। कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं, कुछ मतलब ऐसे फ्री में पढ़े हो फिर? और कह सकते हो। और आप गुजराती हो तो घर भी था आपका? हाँ। तो हॉस्टल का भी आपका खर्चा नहीं था? नहीं। तो मस्त हो गया फिर आपका, सब बच गया। यस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, अब रिलायंस में यू गॉट अ रेंज बिटवीन 7 से 10, ठीक है। अब ये 7 से 10 से जो शिफ्ट था एबीबी के ऊपर, वो कितने का था? वो ज्यादा नहीं था। नहीं पर वो फर्क नहीं पड़ता, रेंज ही आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। है, रेंज ही वो उसी रेंज में मान लो। अच्छा। उसके थोड़ा ऊपर नीचे, माइनस, ऊपर। ओके, प्लस ही, माइनस नहीं। हाँ ऑब्वियसली, ऐसे थोड़ी आप शिफ्ट करोगे। तो वही था, पर एक चीज वही थी कि वो मैंने ये स्विच में भी उसको उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया। ओके, क्योंकि तो सैलरी कंपोनेंट वाज नेवर अ वेरी बिग फैक्टर फॉर यू? ऐसा नहीं है कि पर एक है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक डिसेंट अमाउंट है। ओके, तो ठीक है, मतलब विद एक्सपीरियंस यू कैन गेट अ बेटर पैकेज आल्सो। यस। अगर मान लो कि आप पहले दिन से ही ऐसा माइंडसेट लेके चलोगे कि नहीं मेरे को तो 20 LPA चाहिए, तो वो थोड़ा मतलब कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, मिल भी सकता है, पर जनरली मैं 99 में से अगर बात करूँ तो वो उतना लॉजिकल नहीं है। यस, ग्रेट, वेरी नाइस। अच्छा, एक बात बताइए, आप मूवीज देखते हो? यस, बहुत ज़्यादा देखते हो? 3 इडियट्स देखे हो? हाँ देखे ना। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, ये सारी ये जो मूवी थी 3 इडियट्स, ये उसी की तरह ही आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज गई है कि मतलब नहीं है? मतलब क्योंकि लोग ना इमेजिन ही करते हैं कि भाई मेरे को ऐसे ही फरहान और राजू की तरह मेरे को दोस्त मिल जाए, मेरे को सपोर्ट करते रहे, ऐसे फैकल्टी मिल जाए और एक चतुर भी हो साइड में। तो एट द एंड मतलब हाउ वाज योर इंजीनियरिंग कॉलेज जर्नी? लाइक डज फ्रेंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग यू, कि यू डोंट थिंक सो? नहीं, वो भी एक है कि आपका ग्रुप क्या है, वो भी एक मतलब कि बड़ा पार्ट है। अभी मान लो कि सब पार्टी वाले हैं तो वो सब वही चलता है उनका, कि घूमना फिरना ही चल रहा है। या फिर मान लो कि कुछ ऐसे है कि नहीं तू क्या कर रहा है भाई, तू कुछ नया ला रहा था, वो कुछ तू बोल रहा था कि अच्छा, इस पे तू रिसर्च कर रहा है। ग्रेट, क्या कहाँ पहुंचा वो? Oh, great. So they should be supporting your visions also. Yes.
कि वो भी कुछ डेवलप कर रहे हैं। अभी फ्रेंड्स है अभी कांटेक्ट में आपके? हाँ है ना, सारे हैं? हाँ सारे मतलब सारे तो नहीं बोल हाँ। सकता पर मतलब है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आफ्टर कॉलेज फ्रेंड्स का होना इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि सब एट द एंड सब मतलब के हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं. सो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, बट एनीवेज दैट इज वेरी गुड. तो करंटली एबीपी इज आल्सो फोकसिंग अ लॉट इनटू ईवीज, electric vehicles. yes. Right. Now the EV industry is currently booming. Hmm. There is a lot of vehicle based production that is currently happening. और fuel cell vehicles से अभी electric vehicles में जो conversions है वो बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है. Yes. And I have seen ABB very well working with Yamaha, with Hyundai, with a lot of automotive based companies. Yes. So because you're a part of the this company, yeah. so what do you think the vision is? मतलब are they acting fast? Are they going into the EV sector? Is ABB currently focusing and developing instruments? And what are the partners? मतलब कौन कौन है? ठीक है, वो एक थोड़ा डिफरेंट सेक्टर हो गया, पर मुझे जितना पता है कि जो भी क्वार्टरली अपडेट्स वगैरह उसमें जो भी आता है, तो आपको अगर पता होगा कि एबीबी का F1 में भी एक yes, राइट. सो उसमें भी उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा कुछ मतलब कि वो ईवी लेवल का तो अलग ही चल रहा है उनका. पर उनका उस ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा बहुत they have a lot of vision in the automobile sector, specifically with F1. yes. Okay. So कहीं ना कहीं वो लोग ना ई मोबिलिटी करके yes. सो वो उनका एक अलग सेक्टर है. तो वहाँ पे भी वो लोग अच्छा खासा रिसर्च कर रहे हैं. और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो उनका टाई अप्स वगैरह और प्लानिंग वगैरह आ रहा होगा. Got it. तो do your colleagues currently are in the EV sector who are working with you? ऐसे भी हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं. तो शायद कुछ और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज इज करंटली एबीबी वर्किंग विद. क्या पार्टनर्स है ईवी के लिए स्पेसिफिकली? तो सो एक्चुअली ईवी सेक्टर में मेरे कॉन्टैक्ट में तो अभी कोई है नहीं. ओके. बट क्वार्टरली अपडेट्स वगैरह में वही सब होता है कि उनका इतना कुछ तो ग्रोथ वगैरह सब चल रहा है. बेसिकली उस पर मतलब मेरा टॉपिक नहीं है वो, तो उतना मैं फोकस नहीं करता उस पर. ओह ग्रेट. एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है. नाउ ठीक है, थोड़ा सा आपसे एक बार पर्सनल सवाल है. एक बात बताइए, यू आर अ गुजराती. यस. प्रॉपर गुजराती. यस. कभी धंधा करने का मन किया? स्टार्टअप करने का? यस. आप इतने बड़े बड़े कंपनीज में काम कर चुके हो, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है, कभी मन किया कि भाई मैं अपना खुद का एक कंपनी शुरू करता हूँ, कि अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करता हूँ जो मैं बस ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कि आईसीज में मशीन ऑटोमेशन में, क्योंकि करंटली गुजरात इज बूमिंग एज अ वेरी बिग ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑल्सो, नंबर वन. इट्स ऑल्सो बूमिंग एज एन एनर्जी सेक्टर. It is also booming as a machine automation sort of a sector. So currently industry 5.0 का बहुत ज़्यादा boom है गुजरात में. Yes. Because of obviously Narendra Modi. Now I just want to know this कि what is your definition of you creating a startup into these things? Because आपकी जो fundamentals है that is growing a lot. Yes. The future is very high. Machine automation का industry 5.0 का the future is growing a lot. वो exponential growth में do you think कि your that धंधा वाला that mentality can come into गुजराती वाला जो mentality है वो? हाँ. Yeah. So मेरा पर्सनली ऐसा थिंकिंग है कि स्टार्टअप अगर आपको चालू करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब ज़्यादा चाहिए कि क्या कौन से सेक्टर में सब कैसे काम होता है. फिर आप जिस चीज़ का भी चालू करने जा रहे हो, ठीक है, उसका भी आपको एक बेसिक नो हाउ तो ठीक है होगा ही, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होनी चाहिए. हाँ, उसका एक एक्सपीरियंस, उस चीज़ के अंदर आगे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वो अगर आप एक सेक्टर को पकड़ के उसको फोकस में रख के उसके बारे में अगर आप स्टार्टअप का सोच रहे हो, तो उसके अंदर अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है. So you think that gaining first experience and then building a startup is something that you would prefer? हाँ, so वो एक वे होना चाहिए अगर आपको करना है तो. Okay, very nice. एंड ये जो इंडस्ट्री है इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस लेके सब मतलब कोई भी इंडस्ट्री आपको अगर एक्सपीरियंस लेके करना है तो उसमें आपको ऑब्वियसली बाल सफ़ेद करने ही पड़ेंगे. फॉर श्योर मतलब कि टाइम देना पड़ेगा फॉर श्योर. दर्शन एक बात बताइए, यू आउट ऑफ एवरी फील्ड यू पिक्ड आउट अ कोर इंजीनियरिंग फील्ड. यस. करेक्ट. यू आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इसी आईसी में हो आप. यस. तो व्हाई डिड यू पिक अ कोर इंजीनियरिंग फील्ड? नंबर वन, क्योंकि सीएससी में तो बहुत पैसा मिल रहा है, नंबर वन, जो अभी तो चल रहा है. हाँ. एआई में बहुत पैसा मिल रहा है.
तो आउट ऑफ ये कंप्यूटर साइंस, ये जो जनरेटिव एआई, ये सब कुछ जो चल रहा है, व्हाई डू पिक आउट अ कोर इंजीनियरिंग फील्ड? पहला मेरा ये क्वेश्चन है. करेक्ट. अगर आपने कोर इंजीनियरिंग फील्ड पकड़ा है, तो उसमें आपको एज अ कोर इंजीनियर क्या प्रॉब्लम्स आई है, अगर भी आई है तो, जो शायद एक कंप्यूटर साइंस बच्चे को शायद नहीं आ रही है, कि शायद आ सकती है. यस. सो बेसिकली आप जॉब सिक्योरिटी को अगर पकड़ के चलो, ठीक है, तो वो अगर आप देखने जाओगे तो CSE में पर्सनली अभी मतलब कि कैसा हो रहा है आप देख ही सकते हो. US वगैरह के ऊपर पूरा बेस्ड है वो मार्केट, एंड उसमें अभी ले ऑफ्स वगैरह चल ही रहा है. ऊपर से AI वगैरह आ गया, तो वो अभी जॉब सिक्योरिटी उसमें भी कुछ ज़्यादा. जो लोग जॉब सिक्योरिटी के लिए CSE में जा रहे थे, लेकिन उनकी भी अभी जॉब सिक्योरिटी नहीं है. तो उनकी भी नहीं है, तो वो लोग अभी बेसिकली क्या करेंगे, खुद का कुछ तो स्टार्टअप वगैरह चालू करके, लेकिन IT कंपनी खोलेंगे नहीं तो स्टार्टअप का. हाँ, तो वो करेंगे. ठीक है. अभी कोर इंजीनियरिंग में कैसा है, ठीक है, कि मान लो कि आपके पास फंडामेंटल्स वगैरह सब है, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके आपके पास मशीन एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ है ना कि वो इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं हो सकती. ओके. और एक और चीज़ कि AI वगैरह जो भी आ रहा है ना, ठीक है, मान लो कि कोडिंग वगैरह ऑटोमेटिक हो जाएगी ये सब, ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो CSE वालों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी कंपैरेटिवली एनी कोर इंजीनियरिंग फील्ड, क्योंकि यहाँ पे ना मल्टीपल स्ट्रीम लाइन्स है कि अगर मान लो आपको कल को शिफ्ट भी होना है तो आप इजीली शिफ्ट भी हो जाओगे, और आपको उतना कुछ ज़्यादा स्किल्स भी नहीं चाहिए उसके लिए. Got it, क्योंकि आप ऑलरेडी उसी वे के अंदर फोकस्ड हो. सो मेक सेंस. Now tell me something, Darshan. Before we move into our next segment, I would want to ask you one final question for sure. I wanted to know this कि companies like ABB, Nvidia, Siemens, Cisco, companies like Fanuc, Delta, these companies are basically creating automation. Yes. Automation का मतलब ही है replacing a manual work. Yes. Manual work is only possible when a human does it. Correct? अभी के लिए तो that is a reality. Manual work कर रहे हो मतलब कैसे कर रहे हो? एक human being ही कर रहा है, तभी जाके वो manual work है. अगर वो process ही automate हो गया तो वो industry की automation हो गई. तो these companies जो है, are they playing God? मतलब what are they exactly doing? Because if do they want to replace humans? मतलब because अभी के scenario में generative AI, use of LLMs, use of artificial neural networks and deep minds. Yes. Specifically with deep neural networks and artificial neural networks. में यही आ गया है कि मतलब I want to replace a human being, okay, and make it much more better, faster, and much more cheaper. Yes. AI is obviously 100% more cheaper than that of a human being का cost. तो आप बिकॉज एक ऐसी कंपनी में काम करते हो दैट इज अ फ्यूचर बेस्ड कंपनी, मतलब इट इज वर्किंग विथ फॉर द फ्यूचर, इट इज वर्किंग टुवर्ड्स द फ्यूचर. करेक्ट. सो व्हाट आर दे स्पेसिफिकली डूइंग? मतलब दे कैन रिप्लेस योर जॉब वन डे. मतलब 3 years डाउन द लाइन मैं अगर आपको बोलूं, व्हेन यू सेड कि मतलब आप जो मशीन ऑटोमेशन में भी काम करते हो, इट इज नॉट वेरी इजीली रिप्लेसेबल. एक रोबोट आ जाएगा, वो आपका मशीन ऑटोमेशन आपसे बेटर करेगा, फिर आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. पर वो रोबोट को प्रोग्राम कौन करेगा? हाँ, yes, very true. That is the thing, like correct. So these companies have this mindset कि मतलब मुझे full automation करना है, सर they also want human beings, लेकिन उसके साथ साथ robotics. Actually वो जो आप बता रहे हो ना, वो ऐसे वे में ये कंपनीज पोर्ट्रे कर रही हैं कि मान लो कि जो भी ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो वे थे उनके प्रोडक्शन वगैरह के, ठीक है, तो इनको क्या करना है, इनको ऐसा नहीं है कि भाई ह्यूमन बींग को रिप्लेस करना है, लेकिन इनको प्रोडक्शन फास्टर करना है बस. yes दैट इज द गोल. So these companies want to make the production much faster. Yes, क्योंकि they want to expand also. Yeah, lesser time में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन निकल सकता है. So that is the ultimate goal, I guess. That's the reason they are stepping into that future. Yes. Even अभी भी जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं ना, specifically in industry 5.0. Yeah. So उसमें भी वो लोग वही फोकस करते हैं कि भाई कन्वेंशनल हमारे पास क्या था और हम इसमें अपग्रेड करके कैसे इसके टाइम को रिड्यूस करके आउटपुट कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं. So that's the reason they are using it. Yes. So that is great, yeah, Darshan. The things that you have explained, the experience that you have, that's a lot.
and at this age that you are in, the type of experience that you have gained and the type of companies that you have done is actually commendable यार. Like मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि इतना सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया अभी तो just लेकिन बट इट्स अ स्टार्ट है, लेकिन वो स्टार्ट इतनी मतलब सटली हुआ है जहाँ पे विदाउट एनी यू नो एनी ग्रीड फॉर मनी, अनपेड इंटर्नशिप से स्टार्ट करके जो आपने एक्सपोजर गेन किया है, दैट्स अ लॉट. बट एनीवेज आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट फॉर यू दर्शन. थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं मूड, ठीक है? एंड आपको एक दो चीजें थोड़ा सा हटके पूछते हैं बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई वुड ऑल्सो लव, दैट इज समथिंग दैट पीपल विल ऑल्सो लव, ठीक है? सो हियर इज द रैपिड फायर राउंड. ओके, सो दर्शन, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. ओके, PS, this is not Coffee with Karan. So, this is a normal rapid fire round, so we are not doing that. Okay, so we have some questions for you. Obviously, it is going to be very tricky. And थोड़ा सा spice up करते हैं mood, ठीक है? ताकि आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी थोड़ा मजा आएगा, है ना? चलो, so just आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये सारी questions ऐसी हैं जिसमें आपका थोड़ा we will get to know your other side. Okay? जो आपने ऑब्वियसली बताया नहीं अभी तक तो, एंड विल ऑल्सो गेट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट योर फ्यूचर साइड, ठीक है? ओके, रेडी? शैल वी स्टार्ट? जो दिमाग में आता है यू हैव टू से दैट फर्स्ट, ओके, आफ्टर हियरिंग द क्वेश्चन, ठीक है? कूल. प्लस उसके ऊपर इफ यू वांट टू हैव लाइक अ क्विक एक्सप्लेनेशन, वी आर रेडी टू गो. ओके, बट फास्ट है, रैपिड फायर है, ठीक है? चलो, गुड. क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू कुड गो बैक इन टाइम, व्हाट्स वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू अनडू? ओके, सो कॉलेज टाइम में जो इंटर्नशिप्स वगैरह करे थे वो अच्छे से, मतलब कि एक दो और कर लेता मैं. और करनी थी आपको? हाँ. 4 ही तो कर लिए थे आपने, और कितने कर लोगे? नहीं, मतलब कि एक थोड़ा पोर्शन रह गया था. अच्छा, और भी करनी थी? एक सेक्टर थोड़ा और टच करना था. अच्छा, और एक सेक्टर भी टच करना था? हाँ, मतलब IoT वाला जो मैंने करा था ना लास्ट में, वो थोड़ा अधूरा सा रह गया था. तो देयर इज ऑलवेज अ हंगर फॉर वांटिंग अ बेटर एक्सपोजर और बेटर एक्सपीरियंस, लाइक वो करंट ट्रेंड्स के हिसाब से, क्योंकि अभी IoT तो आपको एक अच्छी जॉब भी, एक अच्छी पैकेज भी अगर आप एक्सपेक्ट करते थे तो वो भी हो जाती है अगर आप और एक एक्स्ट्रा इंटर्नशिप कर लेते. ग्रेट, वेरी नाइस, गुड आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इज ऑटोमेशन मेकिंग लाइफ इजियर और ह्यूमन लेजियर? एक्चुअली इजियर, बट ह्यूमन लेजी होता है. वो अपने मतलब एडप्ट ऐसे करता है कि ऑब्वियसली आप और मैं लेजी हो ही जाएंगे. यस, बट थिंग्स विल गेट फास्टर. हाँ, तो इन योर वर्क ऑफ ऑटोमेशन योर लाइफ हैज बीन इजियर कि आप लेजी हो गए और ज़्यादा? ऐसा नहीं है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा तो रहता है कि नहीं यार अभी तो मूड नहीं है. लेकिन अच्छा, मूड नहीं प्रॉपर कॉर्पोरेट? प्रॉपर कॉर्पोरेट के बाद थोड़ा मन नहीं करता, मन थोड़ा. हाँ, तो वो सॉफ्टवेयर यूज करके तो आपका तो इजी हो जाता होगा फिर जो भी आपका काम है. तो डिड यू इमेजिन कि मतलब मैनुअली ये कैसे होता? अगर आपके पास अगर वो सॉफ्टवेयर ही नहीं होती ABB का, तो आप करते कैसे? तो फिर वो जो ट्रेडिशनल जो लोग जा जाके वो मशीन लाइन पे काम करते हैं, वैसे चलता. यस. तो लाइफ इजियर, करेक्ट? ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवील वन सीक्रेट ऑफ ABB जो किसी को भी नहीं पता. उनका एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मतलब कि HR कनेक्ट और वैसा रखते हैं कि जनरली जिसमें HR 1-to-1 पर्सनली आपसे मतलब कि हर साल में एक बार या फिर क्वार्टरली एक बार, अभी मुझे तो नहीं पता, एक ही बार हुआ है मेरा अभी तक. तो वो आपसे पर्सनली कनेक्ट करते हैं. कैसे करते हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. ऑन मीट. ओके, आप अगर आप फिजिकल ऑफिस में अवेलेबल हो तो वैसे, और आपको अगर ऑन साइट कहीं गए हो तो ऑन कॉल, वो मतलब कि फेस टू फेस काइंड ऑफ मीट प्रेफर करते हैं. ओके, और उसमें आपको पूछता है कि हाँ भाई आपके अभी क्या चल रहा है, आपके अभी गोल्स हाल चाल पूछते हैं, इफ यू आर फाइन, मेंटली फाइन. ओके, आपका सब कैसे जा रहा है वर्क फ्लो पूरा, आप कहीं बर्डन तो नहीं फील कर रहे हो, वैसा काइंड ऑफ. सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज वेरी गुड. वो थोड़ा रिलायंस के कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं आपको, तो दैट्स अ सीक्रेट. ओके, व्हाट अबाउट सम सीक्रेट इन टर्म्स ऑफ कुछ एंगेजमेंट होती है, लाइक पार्टीज होती है बीच में मूड लाइटन अप करने के लिए, कहीं बाहर लेके जाते हैं आप लोगों को, वैसे काइंड ऑफ एक्टिविटीज भी होते हैं. वो तो डेफिनेटली रिलायंस में भी होते थे. ओके, बट इसमें कंपैरिजन में अगर बोलूँ तो इसमें थोड़ा वो लोग रखते हैं वैसा कि एम्प्लॉयज एंगेजमेंट जो है वो थोड़ा. एंड एम्प्लॉयज से एंगेज करने के लिए डू यू हैव सम फन एक्टिविटीज जो आप करते हो ऐसे कुछ, मतलब ऑफिस के अंदर? वो कुछ भी रीलोड चाइल्डहुड करके कभी हुआ था लास्ट में. रीलोड चाइल्डहुड क्या होता है वो? मतलब उसमें चाइल्डहुड के जो गेम्स रहते हैं वगैरह, तो वो सब ऑफिस में सब
इंटरेक्शन उससे थोड़ा अच्छा हो जाता है, वेरी बॉन्डिंग नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। तो अगर मैं सीक्रेट के बारे में बात करूँ तो एक अभी ऐसा चल रहा है ओ कि जैसे गिटहब कोपायलट है, हाँ, तो वैसे एबीबी अपना खुद कुछ एआई टाइप ऑफ टूल कर रहा है क्रैक, ओ ऑलमोस्ट वाओ, क्रैक हो गया है। अच्छा अभी रिसेंटली जो SPS24 हुआ था यूरोप में, वहाँ पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी करा है, अच्छा, और अभी वो जल्दी ला रहे हैं यहाँ पे। ओ तो द टेक प्रोग्रामिंग साइड ऑफ में इट। यस, ओ तो मतलब दैट मीन्स दैट वन क्लिक ऑफ अ बटन सारी ऑटोमेशन डन। नहीं मतलब 90% ऑफ वर्क विल बी डन। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सो दैट इज बेसिकली द कोपायलट ऑफ एबीबी दैट दे हैव लॉन्च्ड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो ये सीक्रेट तो हमारे बीच में ही रहेगा, डोंट वरी। ओके। Anyways, let's go to the next question. The coolest thing that you have worked on in order to get into ABB? सो वहाँ पे मतलब कि मैंने जो बॉस रेक्सरोड जो था, वहाँ पे ट्रेनिंग में पीएलसी का सेशन चालू हुआ, ठीक है। वहाँ पे जब उन्होंने बेसिक से स्टार्ट करा तो वो मेरे को ऑलरेडी पता था, तो वो मेरे को वहाँ पे कूल लगा कि ठीक है, ये लोग तो जहाँ मतलब स्क्रैप से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे को तो ऑलरेडी ये चीज़ पता है, तो वो थोड़ा एक कूल लगा। और did that help you in ABB? हाँ मतलब कि बोल सकते हैं कि पहले से मेरे मतलब कि प्रोग्रामिंग में अगर देखें तो वो पहले से मेरे पास एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप के लाइक टर्म में, पर था वैसे। And what about any projects? Did you do any projects जो आपके हिसाब से उस टाइम में आपके दोस्त लोग नहीं कर पा रहे थे? प्रोजेक्ट्स में ऐसा था कि फ्रीलांस के नाम पे एक दो प्रोजेक्ट आपने किए थे? हाँ। ओके, तो क्लाइंट्स के। हाँ, तो वो थोड़ा वो भी हेल्प किया मेरे को। इंटरेस्टिंग था, कूल, वेरी नाइस, गुड टू नो। चलो फाइनल क्वेश्चन रैपिड फायर का, व्हाट इज फानुक एंड डेल्टा डूइंग डिफरेंट दैट एबीबी इज नॉट डूइंग? ओके, सो फानुक जो है वो बेसिकली सारे में है ही ये तीनों कंपनीज, पर फानुक का मेजरली कंट्रीब्यूशन सीएनसी में ज़्यादा है, और डेल्टा मशीन ऑटोमेशन में भी है। और कंपैरिजन अगर देखें तो वो लोग कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, और एबीबी जो है वो उसका मोशन में भी है, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन में भी है, फिर रोबोटिक्स में भी है, एआई जैसे अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, एंड बाकी सारे सेक्टर्स अगर देखें तो उसमें भी वो मेजरली है उतना उसका मतलब कि प्रेजेंस है उसका वैसे। ठीक है, ओके। चलो दिस इज द एंड ऑफ द रैपिड फायर राउंड या दर्शन, यू डिड रियली गुड। हमें इतनी सारी चीज़ें पता चल गई अबाउट एबीबी जो सीक्रेट है, आपको तो पता ही है एनीवेज, जो सीक्रेट है एनीवेज, बट इट इज सो नाइस टू हैव यू एंड इट इज सो नाइस फॉर यू टू शेयर सच अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बट जस्ट वन लास्ट थिंग बिफोर वी कुड एंड दिस अप, मुझे बस यही जानना है और हमारे व्यूअर्स को भी यही जानना है कि अगर एक इंसान को कोर इंजीनियरिंग में जाना है, लाइक इफ अ पर्सन वांट्स टू गेट इनटू कोर इंजीनियरिंग, what are the most important things that he or she should keep in their mind before getting into, such that they are prepared for everything that can come from a core successful engineer to another core engineer? यस यस यस, डेफिनेटली। सो जो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर बताऊँ मैं, तो आप सारी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखोगे धीरे धीरे, ठीक है। स्टार्टिंग से फाउंडेशन में ही आपको बॉयलर्स वगैरह सब ऐसा मतलब मैकेनिकल आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा, कुछ कुछ तो ऐसा लगेगा एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, ये तो पता नहीं बहुत ही लोडेड है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसमें आगे कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह आप करने बैठोगे, या तो बाय फोर्सफुली मतलब आपके फैकल्टीज बोलेंगे वैसे, या फिर आप खुद से करने बैठोगे, तो चार चीज़ें निकल के आएंगी कि भाई ये तो पता नहीं, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं पता। लेकिन हर एक चीज़ में ना आपको ट्राई करना है, ट्राई करते रहना है, बस वही, आपको गिव अप नहीं करना है। आप अगर मैं तो बोलूँगा कि आपको अगर नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा, आपको नहीं पता, तो आप किसी चार लोगों की हेल्प लो, उनको बताओ, फैकल्टीज से बताओ, आपके फ्रेंड्स को बताओ कि भाई मैं ये कर रहा था, ये नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और अगर बात करते हैं कि कोर इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो कोर इंजीनियरिंग में बहुत सारे, जब तक कि आपका पूरा फंडा एक क्लियर नहीं होता, तो हर एक मोमेंट पे आप स्टक जैसा फील करोगे ऑब्वियसली। और वो है क्योंकि अब तक जो कन्वेंशनल पढ़ के हम आए हैं, ठीक है, 11-12 तक,
तो उसमें से जैसे ही ये कोर पे शिफ्ट होगा ना, आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा भाई मैं तो मैथ्स में मैट्राइसिस कर रहा था, अभी यहाँ पे पता नहीं ये सर्किट वगैरह दिखा रहा है, इसमें क्या करना है, ये कैसे काम करेगा, ट्रांजिस्टर रेजिस्टर ये वो सब आएगा। फिर अगर मान लो कोडिंग के व्यू से बोलेंगे तो उसमें भी मतलब बहुत सारी फंडामेंटल्स के रहते हैं कि अगर जावा सीख रहे हो तो क्लास, तो इतना child डरना elements नहीं है, हाँ डरना नहीं फोकस है करना है एक basically। एक पे और वही वही कंटिन्यू करना है। और वही कि आप गिव अप मत करो, आप करते रहो, ट्राई Very करते true. रहो, कोशिश करते रहो। एक वो चीज़ भी है कि ठीक है आप कर रहे हो जो भी प्रोजेक्ट वगैरह, तो आप ट्राई करो कि अभी करंट क्या चल रहा है ट्रेंड के हिसाब से। मान लो कि IoT चल रहा है, ठीक है, तो आपने जो कुछ भी बनाया तो उसमें ट्राई करो कि क्या इसमें मैं IoT डाल सकता हूँ, या फिर करंटली जो भी चल रहा है उस हिसाब से मैं इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो अगर हो सकता है तो ट्राई करो। डेफिनेटली आपको कुछ रिजल्ट मिले ना मिले वो अलग बात है, पर आप करोगे तो आपको You have एटलीस्ट to be in touch with the trends. यस एटलीस्ट आपको कोई मोमेंट पे कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम तो करना आ नहीं गया आएगी कभी। तो उस टाइम पे भी You अगर would मान get to लो know. हाँ मतलब कि अगर मान लो कि आपको एक टाइम के बाद भी अगर वो चीज़ आती है, ठीक है, तो आप कनेक्ट कर पाओगे वहाँ पे कि हाँ ये चीज़ मैंने इतनी करी थी, अभी यहाँ से ऐसे हो सकता है वैसे। चलो So, ग्रेट, ओके, दैट वाज रियली ऑसम टू नो यार दर्शन। इवन व्यूअर्स को भी अच्छे से आइडिया आ गया होगा एंड प्लस दे फील, आई थिंक मेरे को तो बहुत मोटिवेशन हो रहा है, तो आपको भी तो बहुत मोटिवेशन होना ही चाहिए। सो थैंक यू सो मच दर्शन फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग इन, गिविंग सच अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट फॉर आवर व्यूअर्स। आपसे जो जो भी इंस्पिरेशन मिली है ऑब्वियसली आई थिंक दे आर गोइंग टू ऑब्वियसली यूज इट, एंड उसी हिसाब से आई थिंक दैट कि उनका करियर भी आपकी तरह इतना अच्छा बने और ज़्यादा बनते रहे। Anyways, so guys, this was one such podcast that we got for you from my equation team. I think in here you learned quite a bit of informations about industry automation, about machine automation, about artificial intelligence, about the world's one of the biggest companies in robotics, which is ABB, and one of the most important aspects of how you are doing certain things which are wrong. What are the things that you're doing that can go right, and the difference between those things that you've learned from Mr. Darshan. So thank you so much for being here till the end. We'll see you in the next one.